Hello guys, hi, welcome back to the channel. So in this part of the selector series, we will be seeing that how we can customize our selector with the help of wildcards. Now what are wildcards guys? For that we can read the documentation in the UiPath. I will also let you guys know it with a classic example. Okay, let's get started. Right. So as you can see, wildcards are symbols that enable you to replace zero or multiple characters in a string. These can be quite useful when dealing with dynamically changing attributes in a selector. Now there are three types of wildcards. Mostly there are two types of wildcards, but in the last we can merge these two types of wildcards to create a new category of wildcards, right? Excuse me. Okay. The first category is asterisk or a star mark. Now it is used to replace zero or more characters. Means ये क्या करेगा, ये जीरो या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को जीरो या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्लेस करेगा. क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा. और एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन अगर हम मिला देंगे सो दे विल बी रिप्लेसिंग व्हाट मैचेस एन एट्रीब्यूट वैल्यू विद एटलीस्ट वन कैरेक्टर. मीन्स कम से कम ये वन कैरेक्टर को मैच करे, कम से कम, एटलीस्ट वन. मैक्सिमम इट कैन बी एनी नंबर, राइट. कूल. सो गाइस टू इसको हम देखते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल बता रखा है. विल बी टेकिंग सम अनदर एग्जांपल. उससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो वी आर टेकिंग दिस क्लासिक एग्जांपल्स. आप लोगों ने देखा होगा मैंने काफ़ी अपने आरी फ्रेमवर्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैंने एक्मे के थ्रू ही यहाँ पे किया हुआ है. ठीक है, एक्मे सिस्टम्स के थ्रू मैंने किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स इन यूआई पाथ in the selectors category. ठीक है, so for that okay, let's quickly sign in. Okay, actually I'm not at my home right now guys, so I don't have access to a good internet also, right? But don't worry, I will be making the videos on a daily basis for you guys to help you to create some basic concepts, some intermediate concepts and some advanced concepts as well. Okay, and we will be starting our link you series as well guys, don't worry about it. Okay. Okay, so for that, let's quickly, we have already created a process called demo. Inside of this, I use application or browser activities. Just one second. Okay, so I have used a use application browser activity. Okay, and here I'll be indicating the screen. So this screen, right? This is screen I'll be indicating it, right? Let's indicate it again. Okay, okay, and now I will be using a click activity over here. Let's click over here and let's click on work items. As I said that I don't have that much good internet connection guys, so it will be taking a while to automatically selecting the anchors and the fuzzy selector and the computer vision by this settings by this options over here. Okay, let's do one thing. Let's say go to URL, go to, okay, it will be navigating to a specific URL, right? I have already shown you in the RE framework also many times. Okay. So for example, I have to go to work items page, right? From where? From my dashboard I need to go to work items page. Okay, so if I'll run this, see, I'll just show you. If I'll run this process, so what, it will successfully go to the work items URL because we have indicated it as it is, right? You can see as well, just loading in, a work item has been opened. Okay,
But what if, let's take a condition over here, guys. What if I am at search for check, okay, and then I try to run my workflow. Just 1 second, because I have not used this property. Never. Okay. Okay, let's do one thing because it is, let's say open also, never. Now let's try to run it. So as you can see, it is trying to automate this page, right? And why it can't automate this page? Because इसको इसका selector नहीं मिला है. Why it has not found the selector? Because this URL is wrong, right? See, this URL is, जो मैंने चेक करने को बोला है इसको URL, जो उसको ऑटोमेट करेगा, जिसके अंदर ये कंटेनर एक्टिविटी है, इट इज जनरेटिंग अ पार्शियल सेलेक्टर ओवर है, राइट? एंड यहाँ पे क्या है, स्लैश होम है, बट क्या यहाँ पे ये चीज़ है? यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, राइट? सो वी हैव टू मेक दिस थिंग, व्हाट वी हैव टू मेक दिस थिंग डायनामिक. ये आप देख सकते हो, ठीक है? ये देखो, यहाँ एरर आ dash तथा could not find the UI element corresponding to this selector. Now here wildcards come to save the day. कैसे? ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो आई कैन चेक दैट acme-test.waypart.com, this is common in my this URL as well. ठीक है, इसके आगे जाके ही तो कुछ है यहाँ पे, चेक स्लैश सर्च समथिंग समथिंग. तो व्हाट आई कैन डू अगर, अगर मेरा, फॉर एग्जांपल इफ आई डिलीट दिस पार्ट, राइट, एंड यहाँ पे कुछ भी हो अगर, तो क्या ये चल जाएगा? ऑब्वियसली चल जाएगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ पार्ट नहीं होगा, कुछ भी पार्ट होगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगा, राइट? Automatically it will be capturing that this part only, right? I hope you are getting it. So to replace this thing, we are using a asterisk over here. Why asterisk? Because it is saying replaces zero or more characters. Because why more? Because see, हम एक लेटर तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी रिप्लेसिंग सम वर्ड्स, राइट? हम वर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिफ्रेश इट. So यहाँ पे what I can do, I can make this dynamic by using a वाइल्ड कार्ड लाइक दिस. ये मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज कर दिया ऐसे, ठीक है? ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, वाइल्ड कार्ड यूज हो रहा है. यहाँ पे ऐसे करके आई कैन गो टू दिस पार्ट, यहाँ मेरा वाइल्ड कार्ड यूज हो गया इस यूआरएल पे. अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, इसके कुछ भी हो मेरी भला से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अपने आप. अब इफ आई बी रनिंग दिस पार्ट, अब आप देख सकते हो ये यूआरएल, ठीक है, दिस यूआरएल, यहाँ मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये यूआरएल और ये यूआरएल सेम नहीं है, बट ये तब भी चलेगा. Let's see. It worked. As you can see the answer. It worked. And why it worked? इसलिए ये चला है यहाँ पे. Sorry, I'll show you. Because मैंने इसको डायनेमिक बनाया है. How डायनेमिक? मतलब यहाँ पे इसके आगे कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए. Obviously, right? Okay. So this was the example of इस ऐसे ही हम सेलेक्टर्स में भी कर सकते हैं. Right? How I can do? मैं आपको बताता हूँ. इसके लिए I have to take another example of a notepad. Let's quickly create a notepad. Okay, इसको मैं go new, can say demo, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ. Okay, and now let's indicate to automate this part. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एप्लीकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे ये एप्लीकेशन पे काम करना है, राइट? ओके, अच्छा,
Now, okay, let's do one thing. Use application के बदले let's use 1 second. Okay, so guys, to demonstrate the question mark wildcard, what I have done, I have used टू नोटपैड फाइल्स. ठीक है, हम लोग ये क्लासिक एग्जांपल लेंगे, ये वाला जो उन्होंने ले रखा है, बट इन माय ओन टर्म्स. ठीक है, मैं इनको अपने हिसाब से कस्टम बताऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या कर रहा है. फॉर एग्जांपल, मेरे को इसका एग्जांपल आपको दिखाना है कैसे काम करता है क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड. सो लेट्स यूज टाइप इनटू एक्टिविटी, क्लासिक टाइप इनटू, ये विदाउट कंटेनर यूज कर सकते हैं आप लोग. सो इसको मैं पहले हाईलाइट करता हूँ इसके अंदर, वन के अंदर. ओके, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आई राइट वन. गॉट इट. एंड नाउ type into here. I will be using a classic one, sorry for that. Type into classic, indicate on screen, and it will be 2, like this. Okay, cool. So यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2. ठीक है, अब मुझे इसको चलाना है, मुझे इसको क्या करना है, आई हैव टू रन ऑल दिस पार्ट, मुझे रन करना है इसको. ठीक है, सो लेट्स सी. तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रॉब्लम कहाँ पे है. वन इसलिए यहाँ पे रन हो गया बिकॉज वन हाईलाइटेड है. टू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टू हाईलाइटेड नहीं है. अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, टू हाईलाइट हुआ, तुरंत उसने टू यहाँ पे टाइप कर दिया. ठीक है, नाउ ये ऐसे तो मैं बार बार नहीं करूंगा. दिस इज नॉट एन अटेंडेड ऑटोमेशन, दिस इज एन अनअटेंडेड ऑटोमेशन है, दिस इज एन अनअटेंडेड ऑटोमेशन. ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करेंगे. ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू इट्स सेलेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डेमो देना है आपको. ठीक है, तो मैं इसको पहले तो यहाँ से हटाऊंगा, देखो इसके आगे कुछ नहीं है. एंड मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दूँ. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा एक चीज़, इसको डिलीट करके आई यूज अ क्वेश्चन मार्क लाइक दिस. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू run our bot. Okay, so 1 second. There is an error over here, and the error is title notepad. Okay, let's quickly do like this. So I think there is space over there or what? इसमें space है क्या? एक second. No, इसमें space है. Would have space over here. ओके, ओके, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस. ये कहना चाह रहा है, मैं आपको बताता हूँ. जब मैंने इसका सेलेक्टर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, सो इट इज़ यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड ऑफ एस्टेक्स नेचर. ये एस्टेक्स हमेशा यहाँ पे यूज़ कर रहा है. इट इज़ यूजिंग एन वाइल्ड कार्ड ओवर हेयर. देखिए मैं यूज़ करूँगा इंडिकेट एलिमेंट, सो इट इज़ बाय डिफॉल्ट यूजिंग एन एस्टेक्स. सो मैं क्या करता हूँ, आई विल बी यूजिंग लाइक दिस पार्ट. ठीक है, लेट्स सी नाउ. ओके, वैलिडेटेड. एंड नाउ सेकेंड.
2 क्वेश्चन मार्क, ये 1 पे था ना, just one second. So I think it was a 2 only, my bad. So आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेसिंग ओनली सिंगल कैरेक्टर एंड एस्ट्रिक्स विल बी रिप्लेसिंग जीरो और मोर कैरेक्टर, सिंपल। ओके, मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज किया है, क्या है, 1 और 2, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ठीक है, 1 एंड 2 दोनों में उसने 1 एंड 2 लिख दिया है। वाई? बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को चेंज किया है विद अ सिंगल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन मार्क में सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, यस, दिस इज। ठीक है, सो आई होप गाइस दिस इज वेरी क्लियर दैट व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स। आई रिपीट, वाइल्ड कार्ड्स एनेबल यू टू रिप्लेस जीरो और मल्टीपल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। वाइल्ड कार्ड्स तीन टाइप के होते हैं, नॉट प्रैक्टिकली थ्री टाइप्स, देयर आर ऑफ टू टाइप्स वाइल्ड कार्ड, asterisk and question mark. Asterisk will be replacing zero or more characters, wildcard will be replacing a single character. Okay, and we'll be combining asterisk and a question mark, so it matches an attribute value that with at least one character. Okay, so इन्होंने भी यही बता रखा है in the academy, they have already also told like this only. So guys, in the next chapter we'll be studying a very critical part of selectors called the full versus partial selectors, right? हम जानेंगे full selectors क्या होते हैं, full selectors कब जनरेट होते हैं, कब वो नहीं होते हैं, partial selectors क्या होते हैं, when they are generated and when they are not generated. Okay, so I hope guys that this is very clear, that what we have done over here in the part of selectors. Okay, because see, this is very critical when we will be doing UI automation. Okay, if you like the content, don't forget to like, share and subscribe the channel as well. I am literally going very deep in terms of selectors, that's why I am making atomic videos to make you guys understand a single chapter of selectors also. Okay, thank you so much guys, and as always, keep learning.